Okay, guys, my name is Nikhil, and today we'll be talking about CET exam. So the phase one is what we are going to go for this year. I mean this time. So phase one may you will get comfortable with the exam. What is CET exam? Which colleges are there? And we'll talk about few pattern. But detailed pattern will be my next part. The next part will be the phase two, जिसके अंदर I will discuss what are the things and how you have to, and we'll discuss few question as well so that you will be able to understand also. ठीक है, चलो let's get started. So as you know, these are the colleges which we are supposed to target. Okay, it will be next week. Okay, Kunal, chalo, we'll see this now. So these are the colleges you need to target. Now the biggest question is, sir, what is HU, OHU, and AI? I don't care what is what. ठीक है, exactly, Dikshit. I don't care what is what. The only thing that you need to care about is that you should get this much marks. You should get around 150 marks plus. अगर 150 plus कर लिया तो हो गया. Because if you see these things, so you will get confused. The biggest problem is that many people will tell you that you have to get 99.98, 99.97, this and that. बट वो सब उतना सुनने की किसी को जरूरत नहीं है. तुम लोगों को बस ये समझना है कि तुम्हें मार्क्स कितना लाना है. ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज व्हाट इट इज. बट एवरी ईयर all these things gets fluctuated completely. So what is the safe score? The safe score is 150. 150 is something you need to score. Okay, that will just solve all your problems. Okay, that is all. And you will get JBIMS for everything, like whoever you are SC, ST, all India, you are from Maharashtra, non-Maharashtra, it doesn't matter. All you need to care is you need to get 150 marks. If you get 150 marks, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता. You are straight into JBIMS. That's all. Because if you keep this, okay, I have to get 99.94 while you are giving mock, you're getting 99.8. If you keep the what you say percentile as your benchmark, कुछ नहीं होने वाला. तुम्हें ये देखना है कि तुमने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और ये देखना है तुम्हारा क्या टारगेट है. 150 इज द मोस्ट सेफेस्ट टारगेट ऑफ ऑल, बिकॉज इवन आई डिड दैट. मेरा भी सेम था. आई विल एक्सप्लेन ऑल द कॉलेजेस. देन यू हैव सेकंड सिमश्री. 150 प्लस लाने की कोशिश करो, नहीं जा रहा 140 प्लस. Usually 140 में JB भी निकल आता है, but we don't know if 99.99 will be 142, 143 या 144. So 150 is what you need to get. यार 140 is the safest score, but we don't know ना कि क्या situation होने वाली है सागर. We don't know what is going to happen, if they are going to make a easy paper or tough paper. 150 should be like nobody will lose. Okay. So Simsri is the Sindhanam. Sindhanam का सबसे best part and the only best part is its fees. ठीक है, 35,000 is your fee और उसके अराउंड 2-3,000 आपका ये है लाइब्रेरी चार्जेस एंड 10,000 विल बी योर हॉस्टल चार्जेस. 50,000 के अंदर यू आर डन. MBA is done, everything. That's the best part about Simsri. Simsri PGDM. The biggest problem with Simsri and JBIMS is that MMS हैं दोनों. JBIMS is actually nothing but MBA program, but it has been what you say. This college has been क्या कहते हैं? What is that? There is one word. Okay, I forgot that word. So they are associated with Mumbai University, JBIMS and Simsri. ठीक है, हाँ, deemed. Thank you, Abhishek. Since नहीं deemed मत affiliated है, deemed नहीं होता, affiliated होता है. So affiliated है. So these two, JBIMS and Simsri, are affiliated to Mumbai University. That's why their MBA is nothing but MMS. ठीक है. Simsri PGDM is not that. Simsri is the same college, but the problem is that PGDM एक अलग सा course है, which has been approved by AICTE. So they are AICTE के अंदर. So इसके अंदर JBIMS के अंदर in Mumbai you will get around 18 seats are there for all India people, out of which SC, ST, OBC सब हटा के 11 से 12 seat will be to us. ठीक है. Then Simsri के अंदर, मुंबई के अंदर 30 seats are for all of us. ठीक है, that is all the people. And Simsri PGDM के लिए 60 out of 60 seats are for us. इसके अंदर कुछ नहीं है कि non Maharashtra will get this one, Maharashtra will get, no. PGDM is for us because when you are taking a what you say degree called PGDM, you are answerable to AICTE. So AICTE is not gonna do that. ठीक है. और उसके बाद है वेलिंकर. वेलिंकर इज गुड. ठीक है, मेनी पीपल आर देयर हु विल टेल यू वेलिंकर इज नॉट गुड, वेलिंकर का ये बुरा है वो बुरा है, सब बकवास है. इट्स एक्चुअली अ क्वाइट गुड कॉलेज. डेलॉयट और बहुत सी कंपनियां आती हैं वहां पर. घनश्याम सर इज फ्रॉम वेलिंकर यार, अब कम ऑन.
SIES is good enough college. Again, many people are like, देखो यार, it's actually very simple. I am from Chennai, मतलब I've been in Chennai for quite a long time. So when if you talk about the local people, all of them knows that कि क्या कहते हैं, engineering college के नाम पे तुम्हारा ये जो है वहां पर कौन सा कॉलेज है यार, एक अपना उसका नाम भी SRM एंड क्या कहते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वो वहां के लोगों के हिसाब से बेस्ट है और वहां की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं. बट जैसे ही आप बाहर आते हो चेन्नई से, then you are like, oh my god, IIT Madras is actually the best, and which is the reality. Same goes with SIES Mumbai में SIES बहुत अच्छा है. So company also people, the companies which are in Mumbai, they also take people from SIES. ठीक है, और SIES की प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, 10-12 लाख की, उससे ज्यादा की नहीं होती. हाँ, डोंट एक्सपेक्ट 20 के लिए यू हैव टू गो JBIMS. सिमसरी वेलिंकर लाइज इन 10 to 15 lakhs का, SIES lies in 10 to 12. Pumba, the only reason Pumba is good because of its fees again. ये भी कुछ वही 50-60 हजार के रेंज में आता है. Xavier Mumbai again good, again okay, not that great. So ये जो colleges हैं, ये best colleges हैं. चेतना not bad again, ठीक है. But people who are in Maharashtra, JBIMS is the best option you have. Okay, even Simsri is a good option, ऐसी बात नहीं है, ठीक है. नहीं Xavier's एक्सेप्ट करता है. नहीं Xavier's एक्सेप्ट करता है. वो शायद बीच में कुछ इशू हुआ होगा, लेकिन करता है यार. नहीं, इतना तो मैं भी श्योर हूँ. ठीक है, तो विल स्टार्ट डायरेक्टली अभी. ठीक है, अभी ये कॉलेजेस का हो गया. नाउ यू अंडरस्टैंड MMS और PGDM विच इज बेटर, बोथ आर इक्वली गुड, बट इफ इट इज JB, MMS इज द ओनली ऑप्शन यू हैव. ठीक है यार, ये सब मुझे नहीं पता, माइनॉरिटी उसका, मैं बिल्कुल इस चीज को मुझे आइडिया ही नहीं है. ये तो सर ही आपको बताएंगे. आई एम जस्ट हियर टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स आर. ठीक है, तो जस्ट 150 प्लस रखो. 140 खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए या एनीथिंग गोज रॉन्ग, इट्स बेटर टू स्कोर 150. 150 is the best option as per my thing. And nothing at MMS is nothing but Mumbai University affiliated and this one AICTE approved is PGDM, but दोनों ही MBA होते हैं. ठीक है, MBA यूजुअली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, तो उन्होंने बस फैंसी बनाने के चक्कर में दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग ऑल MMS. ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं फंबल हो रहा हूँ, लेट हो गया ना एक्चुअली काफी ज्यादा. सर 150 नाउ, देन नो टेंशन. यस नयन, 150 तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुमको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता. इफ यू आर ऑल इंडिया स्टूडेंट और हुएवर यू आर, 150 मींस निकाल के देखे तो उन पे केस ठोक सकता है. दिस इज दैट स्कोर. ओके, इट्स लाइक दैट. JB Finance, सर JB Finance यार मुझे नहीं पता है. 60 सीट्स है आई थिंक, इसी के अंदर क्वालिफाई हो जाता है. हाँ, वो अलग सीट्स हैं. 120 सीट्स इज नॉर्मल जनरल MBA, अंदर 60 इज JB Finance. ठीक है, okay, chalo, we'll get started with this. So okay, we have got tons of things to study and tons of things to read, but our score what we should go for is 150. ठीक है, तो 150 के अंदर आ जाते हैं अपन सीधा. Okay, so we'll start with puzzles. Okay, now if you have black books, no issue. ठीक है, ये सब तुम्हें पता ही होगा कि ये सब कहाँ पर अवेलेबल है. जिनके पास ब्लैक बुक नहीं है वो यहाँ पर चले जाओ, इस जगह पे मैं बता दे रहा हूँ. यहाँ पर और क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे. cetking.com/ एक सेकेंड, हाँ ये बेस्ट है. cetking.com/floor चले जाओ, पजल्स चले जाओ, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी. ये टोटल तुम देखोगे तो ये टोटल, दिस इज ऑल न्यू CET 500 न्यू पैटर्न. तो ये न्यू पैटर्न है, सारे के सारे पजल्स हैं, A to Z पजल्स. whatever it's been mentioned over here, everything is over here. ठीक है, so go to cetking.com/puzzles, you will get the things. Okay, so we'll talk about first circular arrangement. So when we talk about arrangement, okay, in general arrangement has three things: circular arrangement, linear arrangement and parallel arrangement. What's the difference between all these? Circular arrangement में एक circle होगा, there will be like people sitting across. ठीक है, ऐसे 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 करके बैठे होंगे and their direction will be given. If this is a center, few people will be facing center and few people will be facing away from center. तो वो cases होगा. Either it will be a hybrid case. Hybrid case के अंदर like one person is facing here and one person is facing that side. So whoever is facing this side, उसका left right अलग होगा और इस person का left right अलग होगा. ठीक है, that you people are aware of. ठीक है, तो वही basically चीज होती है और कुछ उसमें ज्यादा difference है नहीं. Basically circular linear arrangement questions बहुत easy होते हैं. What is the most tough part is the question itself.
they will write the question in such a way that again वही अपना क्या कहते हैं कैट वाला हिसाब हो जाता है. It will be very tough. Again, it will be very tough questions. I mean, the paragraph will be tough, but you need to decode it. And when you decode, it will be a very simple question. So circular linear arrangement is easy in that terms. ठीक है? That is what it is. Okay, then we have to come for this small thing, which is your parallel arrangement. Parallel arrangement में कुछ नहीं है, very simple. दो ऐसा रहेगा लाइंस, ठीक है. कुछ पीपल यहाँ पर होंगे जो कि नॉर्थ को फेस करेंगे और कुछ लोग यहाँ होंगे जो साउथ को फेस करेंगे. तो ये जैसे रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया, ठीक है. रो 1 एंड रो 2, रो 1 में कुछ पब्लिक बैठी हुई है, रो 2 में कुछ पब्लिक बैठी हुई है, ठीक है. और उनके बीच का क्वेश्चन होगा, ठीक है. बस ये, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है. इट इज नॉट एट ऑल टफ, ठीक है. इट्स लाइक लीनियर अरेंजमेंट, बट ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये काफी इजी होगा. इट विल नॉट बी अ टफ क्वेश्चन. दैट इज वन थिंग. ओके, आप लोग चैट करना नहीं छोड़ रहे. ओके, स्क्रीन इज लुकिंग स्लैंट. क्या 40 वेस्ट. ओके, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? व्हाट इज हैपनिंग विद द स्क्रीन? आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स क्लियर गाइस. हाँ, इट्स ओके. एक मिनट, थोड़ा क्या छोटा. एक सेकेंड यार, रास्ता भसड़ मच गई. शिट. एक सेकेंड. इट्स क्लियर या? नो इश्यूज. चलो, ओके. सो दैट इज वन थिंग. ओके, देन मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस, ये वाला क्वेश्चन यार. एक सेकेंड. ये वाले, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला, दिस क्वेश्चन, डेज, टीचर, कलर, सब्जेक्ट, ये. सो basically this entire thing will be given. Okay, out of this you have to put everything into the as the sir said ना, कि you have to do data entry. data entry के हिसाब से तुम पहले columns बनाओ, उसके अंदर you have to write down what are the things like days, teacher, color and subject, and then you need to write all the informations over here, here and here, and then fill in the blanks. मतलब table fill करने की कोशिश करो by seeing the cases as well as all these things. ठीक है, that is one thing. ओके, सो ओके, कितना टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में? अराउंड 2 months. 2 month है. आई मीन स्टार्ट विद नवंबर दिसंबर, फिनिश कर ले नवंबर दिसंबर के अंदर, एंड देन जनवरी से स्टार्ट करो. बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम. आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑल द चैप्टर्स so that in January I have time to write mock alone. I'll write January के अंदर mock. Many of you, if you can't write in January, then write it in क्या कहते हैं अपना February. That's a problem. That's not an issue. Black books plus mocks are more than enough to get 150. Actually more than enough. You don't need मैं दे रहा हूँ CET दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं कैट लिखूंगा. मोस्ट प्रॉब्ली कैट लिखूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम एनमैट और स्नैप तो अच्छे से स्कोर कर लिया था. सो नॉट गोना डू दैट. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पार्ट राइट नाउ. विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर डे एंड मंथ. डे एंड मंथ भी यहीं पे आ जाएगा आपका, सिमिलरली सिमिलर वे के अंदर. ठीक है, CET 500 में चले जाए यार, ये मिल जाएगा. लास्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ वहीं पे ही है सब कुछ. ये रहा आपका फ्लोर वाला. There will be two boxes will be given, 1 or 2 boxes will be given जिसमें floor होगा. In terms of floor, the person will be sitting, whoever is born in this month, that year, it will be sitting in this floor. उस हिसाब से आपको करना है. ठीक है, that is one thing. Guys, ये आप लोग एक बार अपनी books के अंदर check करो, you will understand everything. ठीक है, it's not a big deal. Okay, डे एंड मंथ भी कुछ ऐसा ही है. वो सारे के सारे यार ऐसे ही हैं, इतना कुछ खास है नहीं. नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल बी स्पीकिंग, आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन छोटा छोटा, सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड. दिस इज योर दिस वाला क्वेश्चन. ठीक है, मंथ दिया होगा. दिस पर्सन इज बॉर्न इन March 31st, March 30th को बॉर्न है, सॉरी April 30th को बॉर्न है. इट इज बिहाइंड, इट इज सिटिंग इन अ कार बिटवीन S एंड P. S कहाँ पर होगा, P कहाँ होगा, जो 30th में वो S के पीछे. so much and I mean so on and so forth. ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन. so again download CET King का ये CK CET King puzzles का and start solving. you will understand. It is nothing. Okay, all you need, see, in most of the question, what I'm trying to say is most of the question there will be 50% of the data given, and 50% of the data you have to find out. So it is quite easy to understand and quite easy to succeed at that particular moment. पजल बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं और करेंगे. ठीक है, so that is, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी रुक जाओ, अभी स्टार्ट किया ही है, मैं आ रहा हूँ उस पार्ट पे. ठीक है, सो
एज यू कैन सी, अब गाइस और क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि फिर बताना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. सो विल स्टार्ट. या सो इज एज what you say, the puzzle is quite time consuming. What you are supposed to do, target 25 marks. When I say 25 marks, ठीक है, pick and choose करो, study everything. Don't be like, no sir, I'll not study arrangements, I'll not study month and day, I'll not study this. No, study everything and then do the pick and choose thing. जहां क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लगा 50% डेटा से कम दिया हुआ है, लीव दैट क्वेश्चन एंड गो. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू 25 मार्क्स एंड नॉट 30 मार्क्स. सो आउट ऑफ 30 स्कोर 25 मार्क्स. ठीक है. Similarly goes with your next thing, which is your logic. लॉजिक के अंदर सिंबल नोटेशन, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन. सिंबल नोटेशन इज नथिंग बट ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन, इफ डी इज लेसर देन एच, ठीक है, इज लेसर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जे इक्वल टू एम. ठीक है. इसमें एम इज ग्रेटर देन डी और एम इज लेसर देन डी. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. नो, डी बड़ा है, ये सब छोटे हैं, डी बड़ा है, दैट्स ऑल. ठीक है. तो ये इनमें से वो पूछेगा ट्रू और फॉल्स. If, or they'll give you option which statement is right in this, so that you have to exactly data comparison जैसा. ठीक है. But it will be more complicated. It will be more complicated. ठीक है. It will not be this easy. It will be more complicated. They will twist you with the language as well. तो जिससे वो तो make sure करेंगे that you break your head completely. That is their job, to be honest. ठीक है. That is symbol notation, nothing else. उससे बड़ा बड़ा नाम है और कुछ है नहीं ज्यादा. Inequality, in other words, correct. ठीक है. Symbol notation, I will actually say do this chapter. Input output सबका favorite, nmat and snap में आता है. Direction sense, blood relation, coding decoding, ये tough नहीं होंगे. This will be quite easy, बहुत easy होंगे. मतलब they'll ask you moderate level of CET is easy, to be honest. ठीक है. Don't count on data sufficiency. ये कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, मतलब दे विल आस्क यू एनी नॉनसेंस. ठीक है. कुछ भी पूछ लेंगे, तो इस पे रिलाई मत करना. सो अगेन आउट ऑफ 30 आई वुड आस्क यू टू गो फॉर 25 मार्क्स. ठीक है. सो टिल नाउ हाउ मच वी हैव इन आर्सेनल? 50 मार्क्स. ठीक है. 100 मोर टू गो. नाउ क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है. कोडेड, यार कोडिंग डिकोडिंग आसान होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करो. ठीक है. एक्चुअली नयन होता क्या है ना, मेरे लिए तो आसान है कोडिंग और डिकोडिंग. ठीक है. देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत आसान है, तुम्हारे लिए टफ है. तो ये होता है क्लिक कर गया, मुझे बहुत ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग क्लिक कर जाता है. तो दैट इज वन थिंग. ओके. प्रैक्टिस करेगा ना, ऑनेस्टली इफ यू आर अनएबल टू स्टडी, आई वुड जस्ट से प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज द ओनली की. आई एम व्हाट यू से, इट पेन्स मी टू से दिस, बट यस, प्रैक्टिस इज द ओनली की. आई थॉट कि शायद कुछ इजी होगा. सर बट 5 पजल कैसे होंगे? कहना बहुत डिफिकल्ट है कि पजल कैसे होंगे. मोस्टली टफ ही होना चाहिए. अभी आई टेल यू, जैसे कि मैंने 14th को लिखा था स्लॉट 2 पे, टाइमिंग पे. मेरे फ्रेंड ने लिखा था 15 को स्लॉट 2 में. तो जिसने 15th को लिखा था उनका पजल्स बहुत टफ आया था. उनका ये वाला पार्ट बहुत टफ था. द पजल पार्ट वाज वेरी 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 टफ, बट देयर लॉजिक, critical reasoning and other things were easy. So that is why you need to take everything into account. Input output यार usually tough नहीं होता है, इतना भी tough नहीं आएगा input output. ठीक है. So that is one thing. Now moving on, critical reasoning part में what you need to do, you need to do only few chapters. You need to only get 5 marks. Don't even think that you can get more than 10 marks in this. 10 marks इसमें लाना बहुत difficult है. क्यों? क्योंकि इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, पैरेलल रीजनिंग, ये सब पूरा एक उसमें आता है, पैराग्राफ. दे आस्क यू एक्चुअली अ पैराग्राफ rather than asking a what you say statement. They ask you a paragraph और उसके बाद बोलते हैं करके दिखाओ. इतना आसान नहीं होता. So I would suggest देखो यार, तुम लोग सब कैट में एक एक मार्क के लिए क्वांट में अपना दिमाग खराब करते रहते हो. So why not actually put too much effort for 25 marks? Put too much effort on these topics ना, puzzles and logic. उसमें लगा दो दम. ठीक है. इसके अंदर the only topic you are supposed to do is syllogisms. Try to get 2 to 3 questions will be easy. ठीक है. In this, then cause and effect and course of action. So this will give you around 5 questions, which is more than enough. So we got now 5. So 5 plus 50 plus 5 is now 55. Totally अभी हमारे पास 55 marks आते हैं. ठीक है. Guys, only do these topics. ज़्यादा topics करने की जरूरत नहीं है. Data sufficiency, you can practice, but do not rely on this because it's not going to be helpful because they ask anything, to be honest.
Yes, this is only for CET, Baba. This is only for CET. Let's come down to quant and DI again. इसके अंदर targeting quant is better than DI. The reason I'm saying 60 minutes के अंदर time ऐसे निकलता है, ठीक है? So you will not have time to do a lot of DI because people are like, we'll do DI. DI is easy. I'm sorry. तो इसके अंदर you target around 20 questions, ठीक है? 20 नहीं, sorry 15 questions, और इसके अंदर 15 if you want to keep things in balance, ठीक है? If you actually want to keep things, yeah, I will pass on the link, website, everything. I'll give you everything. कुछ नहीं होगा, don't worry. देखो सागर, what you are saying quant नहीं होता है is because you are doing quant for CAT, ठीक है? CAT का quant नहीं होता है, which is a reality. तो what we do, we study everything, और जिसका बेसिक, जिससे क्वेश्चन से क्लिक हो जाए हम कर लेते हैं. पीपल हु आर बैड इन क्वांट, उनको लगता है क्वांट नहीं होने वाला है. Until unless you don't give, तुम लोगों ने किसी ने भी बेबी मॉक दिया है ना, सीटी बेबी मॉक, उसको पता है कि कैंट क्वांट इज सॉल्वेबल, ठीक है? सो दैट इज वन थिंग. तो इफ यू आर अनेबल टू डू ना कि नहीं सर मुझसे नहीं हो रहा क्वांट, तो काम कर, इसमें चेंज कर ले, इसको 10 कर दे, इसको 15 कर दे. यार डेटा कंपैरिजन, तुम्हारा ये वाला पार्ट, ये यार ये इजी होंगे. और अगर लगता है नहीं सर मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, देन इरेज इट ना, देन मेक इट 0, देन डू या 20, ठीक है? यहाँ 20 लाने की कोशिश करो, और फिर तुम यहाँ पर 25 नहीं ला सकते, अब तुम्हें +5 और करना पड़ेगा ओवर हियर. तो दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, ठीक है? सो ट्राई टू गेट, इन माई हम्बल ओपिनियन, try to get 15 over here and 15 over here. Who are good in maths, 15. Don't go more than that. So from this portion we have got 30 more marks, ठीक है? अभी 85 हो गया टोटल. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओके, ये टोटल 50 मार्क्स का है. सो नाउ यू शुड गेट, और ये 25 मार्क्स का है. सो यहाँ पर भी अराउंड 20 खींचो, और ये अराउंड 15 खींचो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 85, 90, 100, 120 एंड 20 मोर हियर. ओके, इसको कोशिश करो ज्यादा करने की, बिकॉज क्या है ना, क्लोज टेस्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग ग्रामर भी इंक्लूड करते हैं, सब कुछ इंक्लूड करते हैं. देखो यार, अगर आप कैलकुलेट करोगे 145 तक आप पहुंच जाओगे. 150 इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है? बट एज यू कैन सी ओवर हियर, जैसा सर ने बताया है, 145 JB, 150 is the most safe marks. Word par made easy, Kunal, that's the best thing. You need to go for one word par made easy. देखो यार, targeting 130, 120, it will not give you JB IMS. I will not even give you Willinker. You will go lower than that, ठीक है? तो ये एक चीज कर लेना. तो 50 मार्क्स, यहाँ पर 5 करो, 55. ओके, देन इसके अंदर 50, 15, 15, 30, सो 30, 85, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल बी वेरी इजी. व्हाट हैपन इन माय स्लॉट, ये वाला पार्ट मेरा मुझे लगता है 50 आउट ऑफ 50 था, बिकॉज आई वाज एबल टू डू दिस पोर्शन. आई वाज, एक सेकंड, सॉरी, I was able to do this portion completely, this portion also. ये बहुत easy था. Probable starter is like your reverse of para completion. Para completion में क्या होता है, in between they'll ask you एक line add करनी होगी कौन सी, या in the end they will ask you एक line कौन सी add करनी होगी. The similar probable starter के अंदर तुम्हें starting में line add करनी है. That is simple. Black books are the best for grammar. वरना रेनन मार्टिन करके देख लो, वो तो बहुत टफ है. मेरे पास शायद बुक रखी हुई है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, ग्रामर के लिए ना. यूर आस्किंग मी, यार ये वो बुक है डॉक्टर बीबी जैन की. SSC CGL स्टूडेंट्स यूज अ लॉट ऑफ दिस बुक. हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश इज द नेम, ओके, बाय डॉक्टर बीबी जैन. इट्स वेरी नाइस बुक, ठीक है? तो ग्रामर के लिए वो देख सकते हो. एक सेकेंड.
So as you can see over here, if you have the red books, I mean black books, it's okay. Otherwise ये वाला जो book है 200 rupees का, How to Write Correct English by Dr. B.B. Jain, it's actually quite good. मैंने भी जब grammar के लिए पढ़ रहा था for Snap, I have used only the book in my hand which was black books, I mean the green books at that time, but you can use this book as well. ठीक है, that is one thing you can do. यार ये रही बुक, मैं अभी यहाँ लिंक भी खोला है, करेक्ट इंग्लिश हाउ टू राइट इट बाय डॉक्टर बीबी जैन. SSC CGL people use a lot of these books. That's quite good. Okay, so this is what you need to know. Okay, I'm sorry guys, आज थोड़ा सा फंबल हो रहा हूँ बिकॉज टाइम मैंने थोड़ा सा गवा दिया, वो एग्जाम भी लेट खत्म हुआ आप लोग का, तो इस चक्कर में. ठीक है. Okay, many people are asking me this question again, that what happens if it becomes 1 hour का पेपर, 100 marks का क्वेश्चन होता है, तो I mean 100 marks का टोटल क्वेश्चन होता है, what is going to happen after that? So nothing will happen, they will only cancel few irritating topics. ठीक है, if that happens, which it won't, because most of the exams are 2 hours का, which will not happen. अगर होता भी है ना, तो ये जो है critical reasoning वाला पार्ट ये जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. So I'll just sum it up everything. मैं बता देता हूँ फिर से क्या क्या पार्ट करना है एंड कौन सा टॉपिक करने की ज़रूरत है, विल गेट यू इजीली. बट दैट टॉपिक गाइस, उसको प्रॉपर करना, ये नहीं कि नहीं सर ये नहीं, दिस एंड दैट, डोंट डू दैट, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू. ठीक है. ट्राई, और ऐसा मत बोलो कि सर नहीं हो रहा. मेरा भी कुछ हालत ऐसी थी लास्ट ईयर, बट आई ट्राइड. ओके, आई एम सॉरी गाइस, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताया, मैं बता देता हूँ. मेरे टाइम पे इन माय स्लॉट एब्स्ट्रैक्ट वाज वेरी टफ. आई स्टार्टेड विद एब्स्ट्रैक्ट, अगेन टू माय लक आई स्टार्टेड विद एब्स्ट्रैक्ट, और मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ. इसको भी 15 to 20 मार्क्स, ज़्यादा मत रखना, वी डोंट नो विच स्लॉट यू विल बी इन, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है. सो when you have the 1 hour time with you, ठीक है, if you have the 1 hour time with you and out of 2 hours, do one thing, reading, verbal ability, और ये एक साथ कर लो in 50 minutes. ठीक है, इसको करने की कोशिश करो गाइज, ये बहुत इजी पार्ट है. ठीक है, इससे कभी भी घबराना मत. और मेरा तो ये वाला पार्ट भी इजी था. हमारे स्लॉट का सबसे बेस्ट पार्ट ये था दैट इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी वाज वेरी इजी. मतलब मैंने अराउंड 30 सेकेंड्स में तो पैराजंबल सारे ही सॉल्व कर लिए थे. एंड पैराजंबल वाज नॉट योर टिपिकल पैराजंबल, इट वाज लाइक वन पैराजंबल, यू हैव टू अरेंज इट 1 2 3 4 5, और उसके अंदर द क्वेश्चन इज विच इज द फिफ्थ ऑप्शन, ABCD में से फिफ्थ ऑप्शन क्या है, ABCD में से थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट विल बी दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इन दे आस्क इन पैराजंबल. सो पैराजंबल तो बहुत ही आसान था. ठीक है, बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत टफ थी. ये तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो बहुत ही किलर था मेरे टाइम पे. ठीक है यार, कोई भी स्लॉट मिल सकता है प्रतीक, कुछ भी देते हैं वो लोग, कोई भी स्लॉट दे देंगे. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो ट्राई टू डू this particular thing, these particular things in 50 minutes. ठीक है. now what you have is क्या कहते हैं 1 hour and 10 minutes. ठीक है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इसको भी 50 के अंदर करने की कोशिश करो. ठीक है, और बाकी सब टाइम के लिए ये छोड़ दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक मेरे से मैथ्स नहीं हो रही, तो ये छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की. अगर नहीं हो रहा, एटलीस्ट ट्राई टू सेव गार्ड विद दिस. अदरवाइज टाइम बनाओ और टाइम के हिसाब से करते रहो. ठीक है. एनमैट के लिए रिनी, यू हैव टू सी द वीडियोस व्हिच आई हैव पोस्टेड इन द फाउंडेशन. गो टू योर बेसिक वीडियो फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के अंदर यू विल गेट एनमैट के अंदर सेकंड वीडियो इज माय वीडियो. ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको. ठीक है. सो विल जस्ट एंड द क्लास टुडे. थोड़ा प्रॉब्लम हो गई आज. we'll talk everything in detail with the second phase. ठीक है, second phase में I'll explain each and every question, circular linear arrangement का एक क्वेश्चन मैं explain करूंगा, and then day, month, year, floor. guys, इसके अंदर 50% of the data will be given to you. again I'm keep on saying this, 50% of the data रहता है. see, if you are practicing for CAT, ये तो आराम से होगा तुमसे. ठीक है, it's not like something big problem. ठीक है. ओके गाइज, आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है. एक चीज और, एक सेकेंड बिफोर यू गो, जस्ट काइंडली स्टे एक सेकेंड.